میں تیری تعریف کرتا ہوں باپ، تیرے جلالی قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں باپ، اور خداوند تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے پاک آسمان کو کھول کر تو اپنے بچوں کو اپنی روحانی، جسمانی اور مالی برکات سے مالا مال کر، تاکہ تیرا ہی پاک یسوع نام ان سب عزیزوں کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ خدا باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کیونکہ تو قوت اور قدرت سے معمور خدا ہے، اور تیرے جیسا اور کوئی خدا نہیں باپ۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور باپ تیری منت کرتا ہوں کہ ان تمام گھرانوں کو تو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر اپنی برکات سے مالا مال کر، تاکہ ان کی زندگیوں میں اور ان کے خاندانوں میں کوئی کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ خدا باپ اپنے جلال اور اپنی قوت اور اپنی قدرت کے لیے تو انہیں کثرت کے ساتھ استعمال کر باپ۔ خداوند خدا تو ان کے دل کی مرادوں کو پورا کر اور انہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عنایت کر۔ میں ہر طرح کے دکھ کو، ہر طرح کی تکلیف کو، ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی پریشانی کو اور ہر طرح کی فکر کو میں یسوع کے نام سے کہتا ہوں کہ لعنتی بیماریوں، کمیوں، کمزوریوں چھوڑ دو ان خاندانوں کو فی الفور، آج ابھی اور اسی وقت ان خاندانوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمام زندگیاں اور خاندان خداوند کے جلال کے لیے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان زندگیوں سے اور ان خاندانوں سے خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ خدا باپ تو ان خاندانوں کو برکتوں سے مالا مال کر، تاکہ تیرا پاک یسوع نام ان کی زندگیوں میں ہمیشہ عزت اور جلال پاتا رہے باپ۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں باپ، تیری تعریف کرتا ہوں باپ، تیرے ہی جلالی قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں، اور باپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے کہ میں دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں باپ کہ تیرا جلالی قدرت والا ہاتھ ہم سب کے اوپر اور ہمارے خاندانوں کے اوپر بڑا ہوا ہے، اور تو نے ہم سب کو سنبھالا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیرے ہی جلالی قدوس نام کو مبارک کہتا ہوں، اور یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے عزیز اور بابرکت نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو سلام۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ کلام میں سے ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کے پہلی 3 آیات۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل زمین میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تقریباً 3 ہفتے پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، ایوب فخر خدا۔ ایوب جس کے اوپر خدا فخر کرتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا، اور جو لوگ پچھلے 2 ہفتوں سے شامل نہیں تھے ان کے لیے میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر کلام مقدس میں 4 جو ہیں، ان 3 آیات میں 4 خوبیاں ہیں جو ایوب کی یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس پر خدا فخر کرتا تھا، اور کلام مقدس میں 3 بار خدا نے ایوب کی زندگی کے اوپر اس کے اوپر فخر کیا، اور پھر کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ مشرق کے علاقے میں ایوب جو ہے وہ امیر ترین شخص تھا، he was richest person of the east۔ اور پھر یہاں پر 4 اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ ہم نے پہلے ہفتے میں اس کو دیکھا تھا کہ وہ کامل شخص تھا، یعنی کاملیت کے ساتھ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور پھر اپنی علاقے کے، اپنی جنریشن کے دوران میں وہ راست باز شخص تھا، سب سے زیادہ راست باز شخص تھا، اور پھر تیسری بات کہ وہ بدی سے دور رہنے والا شخص تھا، اور پھر چوتھی بات کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، خدا کا ڈر اور خوف جو ہے وہ اپنی زندگی میں رکھتا تھا۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا بھی تھا کہ اگر ہم بھی ان 4 باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں تو جس طرح خدا جو ہے ایوب کی زندگی کو دیکھ کر اس پر فخر کرتا ہے، تو خدا ہماری زندگی کو دیکھ کر بھی فخر کر سکتا ہے۔ اور پھر پچھلے ہفتے میں نے آپ کو ایوب کے دکھوں کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں مر گئی، جیسا کہ ابھی بھائی شاہد نے پڑھا آپ کے لیے کہ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھی، 10 بچے تھے، 10 کے 10 مر گئے،
उसका तमाम माल मुएशी खत्म हो गया, उसका सारा माल और दौलत जाता रहा, और उसके जिस्म के ऊपर जो है वो फोड़े निकल आए, जख्म हो गए, सर से लेकर कलाम मुकद्दस में लिखा के पांव के तलवे तक। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा कि सिर्फ उसके जख्म ही जिस्म के ऊपर नहीं हुए, बल्कि उसके जिस्म के ऊपर जो जख्म थे उनके अंदर कीड़े पड़ गए, और फिर वो नहायत और अजियत में जिंदगी गुजारता है। और फिर हमने देखा था कि वो मरना चाहता है, वो चाहता है कि वो मर जाए ताकि उसके दुख जो है वो खत्म हो जाए। और फिर हमने ये भी देखा 7वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक कि वो कहता है कि मुझे अपनी जान से नफरत है, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता बल्कि मैं मर जाना चाहता हूं। और फिर कहता है वो अपने दुखों को बयान करते हुए 6ठे बाब में कि काश खुदा मुझे कुचल डाले और मुझे काट डाले ताकि मुझे तसल्ली हो, ताकि मैं अपने दुखों से रिहाई पाऊं। और फिर हमने उसके मजीद दुखों के बारे में 42वें बाब, फिर 19वें बाब और फिर 30वीं आयत में भी पढ़ के देखा था कि वो किस कदर करब में से गुजरा। और फिर हमने देखा कि वो कहता है कि मैं अपनी माँ के रहम ही में क्यों ना मर गया, यानी मैं अपनी माँ के पेट से निकलते ही मैंने जान क्यों ना दे दी। वो फिर अपने जन्मदिन के ऊपर भी लानत करता है, और वो कहता है कि उस दिन पर लानत जिस दिन मैं पैदा हुआ, और वो बयान करता और कहता कि उस वो दिन जो है वो रात दिन जो है वो तारीख हो जाए जिस दिन मैं पैदा हुआ, और वो रात तारीख हो जाए। और फिर हमने ये भी देखा कि वो बयान करता और कहता है कि जिन लोगों को मुझे अपने गले के कुत्तों के साथ रखना भी नागवार था, वो अब मेरा तमस्खर उड़ाते हैं, यानी वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। और फिर वो बयान करता अपने दुखों को बयान करते हुए कहता है कि जो मुझे आता देखकर खड़े हो जाते थे मेरी इज्जत और एहतराम के लिए, अब वो मेरे मुंह पर थूकने से बाज नहीं आते, और वो मुझसे घिन खाते हैं और मुझसे दूर होकर खड़े होते हैं। जो लोग मेरे करीब आने के लिए एक आजाद समझते थे, अब वो मुझसे घिन खाते हैं। और फिर हमने देखा उसके दुखों के बारे में कि उसकी बीवी भी है जो है वो भी उस पर लान तान करती है, और उसकी बीवी जो है वो भी उसे कहती है कि गुनाह कर और मर जा। लेकिन वो कहता है कि तू तो नादान लोगों की तरह बातें करती है, क्या हम खुदावन से सुख पाएं और दुख ना पाएं। फिर उसके बाद हमने अयूब की रास्तबाजी के बारे में देखा था कि किस तरह अयूब अपने आप को खुदा की नजर में रास्तबाज ठहराता है। और उसने कहा कि दूसरे बाब के मुताबिक कि अयूब ने इन सब बातों के बावजूद अपने लबों से खता ना की, उसका इतने उसने दुख बर्दाश्त किए, इतनी अजियत आई हर तरफ से, लेकिन इसके बावजूद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके लबों से एक भी खता की बात ना निकली। और फिर इन सब बातों के बावजूद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अयूब ने गुनाह ना किया, वो खुदा के साथ रास्त रहा, उसने रास्तबाजी को थामे रहा, उसकी नजरें खुदा के ऊपर लगी रही, और उसने कहा कि क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। हमें चाहे अच्छे हो हालात चाहे बुरे हालात हो, हमें खुदा के साथ वफादार रहना है, हमें खुदा के साथ जनादार रहना है, हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है। और फिर उसके बाद हमने अयूब के दोस्तों के बारे में भी देखा कि किस तरह से अयूब के दोस्त जो हैं वो उसके ऊपर आकर इल्जाम लगाते हैं। और शायद आपको याद हो तकरीबन मैंने 38 जो इल्जाम है उसके दोस्तों ने उसके ऊपर लगाए, उनके बारे में मैंने शेयर किया था। वो कहते हैं उसके दोस्त कि खुदा रास्तबाज को बचाता है और शरीर को सजा देता है, तूने शरारत की है। शरीर फिर खुदा शरीरों को आफत के दिन के लिए रखता है, इसलिए आफत तुझ पर आई है। खुदा गुनहगारों को के पांव को जाल में फंसा देता है, इसलिए अब तू इस मुसीबत में फंसा है। खुदा शरीरों को बेसजा नहीं छोड़ता, इसलिए सजा ये तुझ पर आई है। आफत, फंदा और दहशत शरीरों को चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए ये सारा दुख, ये सारी तकलीफ, ये सारी मुसीबत जो है वो तुझ पर आई है। और फिर वो बयान करते हैं उसके दोस्त, और उस पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि खुदा कामिल आदमी को हरगिज न छोड़ेगा, क्योंकि तूने कामिलियत को छोड़ दिया है, इसलिए खुदा ने भी तुझे छोड़ दिया है, और ये जो दुख तकलीफ जो तुझ पर आई है ये तेरे गुनाहों की वजह से है। फिर उन्होंने कहा कि खुदा बदकरदारों को हरगिज ना संभालेगा। फिर उन्होंने कहा कि शरीरों का डेरा कायम ना रहेगा, इसलिए तेरा घर बार सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। खुदा इंसान को उसके इमाल के मुताबिक जजा देता है, तूने जो कुछ किया है वो आज तेरे सर पर आया है। फिर उन्होंने इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा
कि हर किसी को उसकी अपनी ही राहों के मुताबिक बदला मिलता है। ये आज जो सब कुछ तेरे ऊपर आया है, ये तेरा ही किया हुआ है। फिर अय्यूब के दोस्तों ने कहा कि जो बेगुनाह और मासूम होते हैं वो तबाही और हलाकत का शिकार नहीं होते। वो बयान करते और कहते हैं कि यकीनन तूने कोई खता की है, और ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। वेरी क्विकली आई विल जस्ट रिपीट इट। फिर वो कहते हैं कि रास्तबाज, क्या रास्तबाज भी कभी जमीन से काटे गए हैं? क्या रास्तबाजों ने भी कभी नुकसान उठाया है? वो इल्जाम लगाते और कहते हैं कि जो गुनाह को जोतते और जो दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। फिर उन्होंने कहा खुदा होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फंसाता है। फिर उन्होंने कहा खुदा होशियारों को उन्हीं की चालाकियों में फंसाता और उन्हें सजा देता है। फिर उन्होंने कहा शरीरों का दिन जो है वो दिन दिहाड़े अंधेरे से पाला पड़ता है। शरीर जो है वो हमेशा तारीकी की तरफ, तारीकी से चारों तरफ से घिरे रहते हैं। शरीर दोपहर के वक्त ऐसे टटोलते फिरते हैं जैसे रात को। उन्होंने इल्जाम लगाया और कहा क्या खुदा बेइंसाफी करता है? क्या कादर मुतलक अदल का खून करेगा? जो आज तुझ पर ये सारी मुसीबत आई है ये तेरे ही अपने कामों की वजह से आई है। फिर उन्होंने कहा कि खुदा बेदीनों की खुशी जो है वो दम भर की है। शरीरों की तरक्की और जाहो जलाल हमेशा के लिए फना हो जाता है। शरीर के हाथ उसकी दौलत जिससे उन्होंने कमाई है उसी से वो वापस करेंगे। और फिर उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगाया और कहा कि खुदा का कहर, गुस्सा और तबाही शरीरों की मेरास के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और फिर पिछले हफ्ते में हमने ये भी देखा कि अय्यूब का दावा कि वो बेगुनाह है। अय्यूब कहता है, बार बार आगाह करता है और कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, और हमने उसकी बेगुनाही के बारे में देखा। वो कहता है 6 बाब की 10वीं आयत के मुताबिक कि मैंने उस कद्दूस की बातों का इनकार नहीं किया। वो अपनी बेगुनाही बयान करते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं सादिक हूं। वो बयान करता और कहता है कि मैंने सदाकत को पहना और उससे मुलब्बस हुआ हूं। मेरा इंसाफ गोया मेरा जुब्बा और अमामा है, यानी मेरा लिबास है, मेरी सदाकत, मेरा इंसाफ। और वो कहता है कि मैं बेगुनाह हूं और मुझ में बदी नहीं है। वो इन तमाम इल्जामों का जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि बाज आओ, मैं हक पर हूं, मैंने खुदा का गुनाह नहीं किया। वो कहता है कि खुदा को मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूं। वो जवाब देता है और कहता है कि मैं उसके रास्ते पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके हुक्मों से हटा नहीं हूं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। ये बातें जो है तकरीबन पिछले 3 हफ्तों में हमने सीखी। आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अय्यूब की जिंदगी में से, वो है अय्यूब खुदा पर भरोसा उम्मीद रखता है। अय्यूब इन सारे दुखों में, इन सारी तकलीफों में, इन सारी बीमारियों में, इन सारी मुश्किलात में और सब कुछ तबाह हो जाने के बावजूद वो अपना तवक्कल और अपना भरोसा जो है वो खुदा पर जमाए रखता है। और वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। वो जानता है, वो कहता है और कहता है कि अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। मेरी मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। तुम चुप रहो, वो अपने दोस्तों को कहता है कि तुम चुप रहो और मुझे छोड़ दो, फिर जो मुझ पर बीते सो बीते। वो कहता है कि चाहे मुझ पर जो कुछ मर्जी आए, मैं खुदा का दामन नहीं छोड़ूंगा। मैं खुदा की पैरवी करने से इनकार नहीं करूंगा। मैं खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ आज मैंने पाया है वो सब खुदा ही की वजह से है। और अगर आज ये दुख, ये तकलीफ, ये मुश्किल, ये परेशानी, ये फिक्र, ये नुकसान मेरा हुआ है, तो खुदा इसमें से भी मेरे लिए भलाई निकाल लेगा। खुदा इसमें से भी मेरे लिए बढ़ोतरी को निकालेगा। क्योंकि पहले मैंने खुदा के कामों के बारे में सुना था, लेकिन अब मैं रूबरू खुदा को देखूंगा, खुदा की कुदरत को देखूंगा, खुदा के जलाली चेहरे के नूर को देखूंगा। वो अपनी दयानतदारी से हटता नहीं है, वो अपनी सदाकत से पीछे नहीं हटता, वो खुदा की पैरवी करने से पीछे नहीं हटता। लेकिन मेरे अजीजों, आज जरा अपने अपने बारे में सोचें कि हमारी हालत क्या है। हमारी जिंदगी में अगर कोई छोटी सी भी मुश्किल आ जाए तो हम खुदा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा कोई छोटा सा मसला खराब हो जाए तो हम उसके लिए बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर अय्यूब जो है वो बयान करता है और वो कहता है कि मैं खुदा को हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
اور پھر جو کچھ مجھ پر بیتے سو بیتے. وہ کہتا ہے کہ چاہے میرے حالات جیسے مرضی ہو جائیں, چاہے مجھ پر مشکلات, پریشانیاں, فکریں, دکھ جو ہے جس طرح کے مرضی مجھ پر آئے, میں خدا سے ہرگز نہیں مڑوں گا, میں خدا کو ہرگز ترک نہیں کروں گا, میں خدا کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے زندہ خدا کی وجہ سے ہوں. اور پھر وہ 33ویں باب کی 10ویں آیت میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے خدا اس راستہ کو جس پر میں چلتا رہا ہوں جانتا ہے, جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. دیکھے ذرا ایوب کے دل کی کیفیت جو ہے, اس کا دل جو ہے وہ اچھائی کی طرف لگا ہوا ہے, اس کی آنکھیں جو ہے وہ خدا کی بھلائی کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ان سارے دکھوں میں سے, ان ساری تکلیفوں میں سے, ان ساری بیماریوں اور پریشانیوں میں سے خدا مجھے تا کر سونے کی مانند خالص بنا کر نکالے گا. اور جب وہ مجھے تا لے گا, جب وہ مجھے آزما لے گا, جب مجھے ساری ان آزمائشوں کی, ان مشکلات کی, ان پریشانیوں کی, فکروں کی جب بھرمائی ہو جائے گی, جب یہ ختم ہو جائیں گی, تو پھر میں خالص سونے کی مانند نکلوں گا. یعنی وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو ایک اچھے لیول پر, ایک بڑے لیول پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو مور پیوریفائڈ دیکھتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایمان کے ایک اور بڑے ہوئے درجے کے اوپر دیکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان سارے دکھوں میں سے نکل کر میں ہلاک نہیں ہوں گا, بلکہ میں خدا کی قدرت کو دیکھوں گا, اور خدا کی جو قدرت میری زندگی میں کام کر رہی ہے وہ مجھے اور زیادہ پاک صاف کر کے سونے کی مانند خالص بنا دے گی. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں, چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں, ہم خدا کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں, خدا کی پیروی کرتے رہیں, خدا کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں, اور اس کو اپنا آقا, اپنا مالک اور اپنا منجی جانتے ہوئے اس کی پیروی کریں. اور پھر اگلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب اپنے نیک کاموں پر بھروسہ کرتا ہے, وہ اپنی راست بازی کا بیان کرتا ہے, اور وہ خدا پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نیک کاموں پر بھی توکل کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے کاموں کو ہرگز, نیک کاموں کو ہرگز ترک نہیں کیا اور نہ ہی ترک کروں گا. ایوب 29ویں باب کی 3 آیت سے لے کر 33ویں آیت تک آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں خدا کے نور کے ذریعے سے چلتا تھا. وہ کہتا ہے کہ گو مگر میں تاریکی میں بھی تھا تو بھی خداون کا نور میرے چوگل چمکتا تھا, اور میں خدا کے نور سے بھٹکا نہیں ہوں. میں خداون کی طرف سے بھٹک کر اندھیرے کی طرف نہیں گیا, بلکہ اندھیرے میں اگر میں تھا تو بھی میں نے نور کی پیروی کی, سچائی کی پیروی کی, اور اس سچائی کو اپنے دامن سے نہیں جانے دیا. پھر وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا تھا تو چھڑا لیتا تھا. وہ غریب کو مدد کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہتا تھا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں یتیم کا سہارا تھا, جس کا کوئی مددگار نہیں تھا, میں اس کا مددگار بنا, میں ان کے لیے کھڑا ہوا, میں نے ان کی مدد کی اور میں نے ان کو بچایا. پھر وہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیوہ کے دل کو ایسا خوش کرتا تھا کہ وہ گانے لگتی تھی. بیان کرتا ہے ایوب اور کہتا ہے کہ میں نے یتیموں کو, بیواؤں کو اور غریبوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. میں نے ان کے لیے ہمیشہ بہتری چاہیے, میں نے ہمیشہ ان کے لیے ترقی چاہیے, اور میں نے ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کبھی نہیں روکا. تو میرے عزیزو, اگر ہم بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں اپنی زندگی میں اپنائیں تو پھر یاد رکھیں میرے عزیزو, ہم بھی خدا سے برکت کو پا سکتے ہیں, ہم بھی ترقی پر ترقی کر سکتے ہیں, ہمیں بھی خدا اپنی برکتوں سے مالا مال کر سکتا ہے, اور پھر خدا ہم پر بھی فخر کر سکتا ہے, جیسے خدا نے ایوب کی زندگی کے اوپر فخر کیا. اور خدا نے صرف ایک بار ایوب کی زندگی پر فخر نہیں کیا بلکہ 3 بار کیا. تو میرے عزیزو, ایوب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اندھوں کے لیے آنکھیں اور لنگڑوں کے لیے پاؤں اور محتاج کا باپ تھا. وہ بیان کرتا ہے اپنے اچھے کاموں کا اور کہتا ہے کہ محتاج اور ضرورت مند میرا انتظار کرتے تھے جیسے لوگ بارش کا انتظار کرتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو میری طرف سے نا امیدی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اس کے پاس جائیں گے مدد کے لیے اور ان کو مدد میسر نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو, ایوب جو ہے وہ ایک ایسا شخص تھا کہ
जिसके ऊपर लोगों की निगाहें लगी रहती थी, क्योंकि उनको पता था कि कोई एक शख्स है जो उनकी मदद कर सकता है। और जब वो मदद के जब को जरूरत के वक्त किसी चीज की उनको जरूरत होती थी तो उनके ज़हन में सबसे पहले अय्यूब का ही नाम आता था। तो मेरे अजीजों, अगर हम भी अपने आप को ऐसा बना ले कि हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार हो, चाहे वो आपसे बोले या ना बोले, चाहे आपके पास आए या ना आए, लेकिन जब भी वो जरूरत में होंगे तो सबसे पहले आपका नाम उनके जहन में आएगा। खुदा चाहता है कि हम ऐसे बन जाएं। जब हम ऐसे होंगे तो फिर खुदा हम पर भी यकीनी तौर पर फख्र करेगा, जैसे अय्यूब की जिंदगी पर खुदा फख्र करता था। और फिर अय्यूब बयान करता है अपने कामों के बारे में, वो कहता है कि मैं बतालत से नहीं चला हूं, मेरे दिल ने मेरी आंखों की कभी पैरवी नहीं की है, मैं मेरा दिल कभी भी किसी औरत पर फरिश्ता नहीं हुआ है, मैंने कभी अपने खादम या खादमा का हक नहीं मारा है, मैंने कभी अपना नवाला अकेले नहीं खाया, बल्कि मैंने दूसरों को अपनी खुराक में शामिल किया है। फिर वो बयान करता है और कहता है कि मैंने कभी अपने चोखे सोने पर भरोसा नहीं किया। वो कहता है कि मैंने कभी अपने माल और दौलत पर तवक्कल और भरोसा नहीं किया, क्योंकि मेरा तवक्कल और भरोसा जिंदा खुदा पर है, जो कादर मुतलिक है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। वो कहता है कि मैं गुरूर, घमंड और तकब्बर में नहीं गया कि मेरे पास बहुत सारा माल और दौलत है, मेरे पास बहुत सारे घर हैं, मेरे पास बहुत सारे माल मवेशी हैं, मैं बहुत अमीर हूं। नहीं, वो कहता है कि मैंने इन चीजों के ऊपर तवक्कल और भरोसा नहीं किया, मैंने इनके ऊपर कभी फख्र नहीं किया, क्योंकि ये चीजें जो है वो आरजी और चंद रोजा है। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम भी दुनियावी चीजों पर फख्र करने वाले नहीं, बल्कि खुदा पर फख्र करने वाले लोग बने, ताकि हमारी जिंदगियों से, हमारे किरदार से, हमारे चाल चलन से और हमारे उठने बैठने से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और फिर वो बयान करता है अय्यूब और कहता है कि मैं मुसाफिर के लिए अपना दरवाजा खोल देता था। वो बयान करता है कि अगर उस इलाके में कोई भी मुसाफिर आता और उसे कहीं पर जगह ना मिलती तो उसको मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला मिलता। तो मेरे अजीजों, खुदा मुझसे और आपसे भी ये चाहता है कि हम दूसरों के लिए मेहरबान रहें। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो उसको करने से पीछे ना हटे, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो फिर खुदा अपने आसमान को, जो उसका अच्छा खजाना है, वो हमेशा हम पर खुला रखेगा। खुदा अपनी मेहरबानी को हम पर नाजिल करेगा, खुदा अपने फजल को हम पर जारी करेगा, और खुदा फिर हमें अपनी बरकतों से मालामाल करेगा। और फिर हम तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे, और हम दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर बढ़ते चले जाएंगे, और खुदा और दुनिया दोनों की नजर में मकबूल होते चले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आप पर फख्र करे, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के लिए कारआमद साबित हों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मोजिज़ात को जारी करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में नए काम करे, तो फिर मेरे अजीजों, जरूरी है कि आप अय्यूब के से लाइफस्टाइल को अपनाएं, आप अय्यूब की सी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएं, क्योंकि जब हमारी जिंदगियां अय्यूब की सी होंगी तो फिर खुदा हमारी जिंदगी पर फख्र करेगा, वरना वो लानत करेगा और वो कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐ बदकारों मेरे सामने से दूर चले जाओ। लेकिन हमारा हाल क्या होगा? फिर हम कहेंगे खुदावंद, हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े मोजज़े किए, हमने तो बहुत सारे लोगों को कलाम सुनाया, हमने तो बहुत सारे लोगों को तेरे बारे में बताया, लेकिन खुदावंद मुझसे कहेगा और आपसे कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। मेरे अजीजों, आज महज सिर्फ खुदावंद को जान लेना जो है वो काफी नहीं है, बल्कि खुदावंद के साथ इंटीमेसी में, यगानगत में जिंदगी गुजारना जो है ये बहुत अशद जरूरी है। और फिर अगली बात जो अय्यूब की जिंदगी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है अय्यूब की खाकसारी, तौबा और बहाली। अय्यूब ने अपने आप को खाकसार बनाया। अगर आप आखिरी बाब पढ़कर देखें, अय्यूब 32वां बाब, तो यहां पर हमें अय्यूब की खाकसारी, उसकी तौबा और फिर उसकी बहाली हमें नजर आती है। 32वें बाब की पहली 3 आयत में वो बयान करता है कि अय्यूब के दोस्तों ने उसे मुजरिम ठहराया, उसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, लेकिन अय्यूब ने खुदा को नहीं बल्कि अपने आप को रास्तबाज ठहराया। इस वजह से उसके दोस्त जो हैं उसको कमतर समझने लगे, उसको मुजरिम ठहराने लगे,
लेकिन अय्यूब ने खुदा का इकरार करके कहा कि मैंने जो कुछ जो ना समझा वही किया। 43वें बाब की 3री आयत के मुताबिक वो कहता है कि जो मैंने ना समझा वही किया। मैंने अपनी ना समझी में मैंने अपने अच्छे कामों पर भरोसा किया, क्योंकि मेरे अच्छे काम जो हैं वो मुझे बचा नहीं सकते। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मुजरिम ठहराया। यानी ऐसी बातें जो उसके नजदीक नहायत अजीब थी, उनका इल्जाम उसके ऊपर लगाया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने जब उसे माफ किया, जब उसने माफी मांगी, खुदा से बहाली की दरख्वास्त की, तो फिर खुदा ने कहा कि तू इन अपने दोस्तों को माफ कर और इनके लिए बरकत की दुआ कर ताकि मैं इन्हें बरकत दूं, वरना ये खता के मुर्तकब हुए हैं, वरना मेरा गजब और मेरा अजाब जो है वो इन तेरे दोस्तों के ऊपर नाजिल होगा। लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए बरकत की दुआ चाही और खुदा ने उसके दोस्तों को माफ करके उनको बहाल किया। तो मेरे अजीजों, यहां पर एक हमें खूबसूरत लेसन सीखने को मिलता है कि हमें माफ करने वाला रवैया जो है हमेशा अपने अंदर रखना है, माफी को हमेशा जारी रखना है, क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ करते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, हम तरक्की करते रहेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते रहेंगे। और फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अयूब कहता था कि मैं खुदा को देखूंगा। तो 43वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत में वो बयान करता है कि मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी। वो बयान करता है, वो कहता है खुदा से यह बात कर रहा है और खुदा को कह रहा है कि मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है। उसका तवक्कल था कि मैं इन्हीं आंखों से खुदा को देखूंगा। लेकिन अब जब खुदा उसे बहाल करता है, जब खुदा उसे बरकत देता है, जब खुदा उसे तरक्की देता है, तो फिर वो कहता है कि हाँ, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। वो अब हाम में जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि यकीन और तवक्कल और भरोसे में जिंदगी गुजारता है। और उसी भरोसे के वसीले से उसने कहा कि पहले मैंने तेरे बारे में सुना था, लेकिन अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। तो मेरे अजीजों, ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि हम जिंदा खुदा को देखें, हम जिंदा खुदा के जलाली चेहरे के नूर को देख सकें, क्योंकि खुदा अपने चेहरे का जलाल जो है वो मुझ पर और आप पर जलवागर फरमाना चाहता है। लेकिन हम उसी वक्त उसको देख सकेंगे जब हम सोने की तरह ताए जाएंगे, जब हम सोने की तरह पाक साफ किए जाएंगे और प्योरिटी जो है, पाकीज़गी जो है, वो हमारी जिंदगियों से जब छलकने लगेगी। जब सोना पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, तो वो चमकना शुरू कर देता है। तो मेरे अजीजों, ऐसे ही खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को भी पाक करना चाहता है, पाक ठहराना चाहता है, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। अयूब ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के लिए दुआ करता हूं, और उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की और खुदा ने मेरी दुआ को सुना और उन्हें माफ किया। 43वें बाब की 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक आप पढ़कर देख सकते हैं कि यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की और खुदा ने उनको माफ किया। और वो इल्जाम जो उसके दोस्तों ने उसके ऊपर लगाया था और उसकी जो डिस्करेजमेंट उसको जो दी थी, उसकी जो हौसला शिकनी की थी, उसकी तसल्ली, उसकी भरमाई खुदा ने उससे की। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने अय्यूब को दुगनी बरकत दी। कितनी बरकत दी? दुगनी बरकत दी। आज अभी थोड़ी देर पहले अगर आप भाई भाई शाहिद ने यह हवाला पढ़ा था, अगर आप पहले बाब का आखिरी बाब के साथ मुवाजना करें तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से दुगनी बरकत दी। पहले बाब में हमने देखा कि उसके पास 7,000 भेड़ें थी, ठीक है। और अगर आप 42वां बाब पढ़कर देखें तो यहां पर लिखा है, यूं खुदावन ने अयूब के आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत उसे ज्यादा बरकत दी और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां हो गई। कितनी भेड़ बकरियां हो गई? 14,000। और पहले उसके पास कितनी थी? 7,000। और फिर आगे लिखा है और 6,000 ऊंट। पहले उसके पास कितने थे? 3,000 ऊंट। फिर उसके बाद लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उसके पास 500 जोड़ी बैल थे।
500 जोड़ी बैल, लेकिन उसके पास आगे लिखा है 12वीं आयत में कि उसके पास 1000 जोड़ी बैल हो गए। और पहले उसके पास कितनी गधियां थी? 500 गधियां थी। और फिर उसके बाद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके पास 1000 गधियां हो गई, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। खुदा ने वो सब कुछ उसको बहाल किया। सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि डबल उसको पोर्शन दिया, दुगना उसको दिया। तो मेरे अजीजों, खुदा ये बयान करता है कि मैं वफादार खुदा हूं। खुदा अपनी बरकत जो है वो 1000 पुश्त तक कायम रखता है। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अय्यूब 140 बरस तक जिंदा रहा, मजीद 140 बरस तक जिंदा रहा। और फिर लिखा है आगे कलाम मुकद्दस में कि अय्यूब ने अपने बच्चों के बच्चे और पोते चौथी पुश्त तक देखे। यह खुदा की तरफ से बरकत है, ब्लेसिंग है। और खुदा ने इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि अगर हम खुदा के साथ चलेंगे, अगर खुदा की पैरवी करेंगे, तो हम अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे। और यहां पर हम अय्यूब की जिंदगी में देखते हैं कि उसने अपनी चौथी नस्ल तक बच्चों को देखा। ना सिर्फ उसने अपने बच्चे देखे, बल्कि अपने बच्चों के बच्चे, और अगर आगे उनके पोते, चौथी नस्ल तक उनको उसने देखा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद हमारा खुदा बहाली का खुदा है। खुदावंद हमारा खुदा तरक्की का खुदा है। खुदावंद हमारा खुदा जलाल और कुदरत से मुलब्बस खुदा है। वो सब कुछ अपने लोगों के लिए बहाल करना चाहता है जो वो चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, अय्यूब की जिंदगी जो है वो हमारे लिए एक मशले राह है। हर तरह के हालात में खुदावंद चाहता है कि हम खुदा पर तवक्कल और भरोसा रखें। अय्यूब ने कहा कि क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं? क्या अच्छी चीजों के लिए हम खुशी मनाएं और बुरी चीजों के लिए हम खुदा पर इल्जाम लगाएं? नहीं मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, हम खुदा की ताबेदारी करते रहें, खुदा की फर्माबरदारी करते रहें, और खुदा की ताबेदारी और फर्माबरदारी करना हरगिज तर्क ना करें। खुदा हर तरह के हालात में भलाई पैदा करना जानता है। अय्यूब ने कहा कि जब खुदा मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकलूंगा। अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। और उसने खुदा को देखा। ज़बूर 119 उसकी 71 वर्ष में 71 वर्ष में लिखा है कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आयन सीख जाऊं। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के नेक इरादे के मुवाफिक बुलाए गए। हर एक के लिए नहीं, उनके लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है जो खुदा के नेक इरादे के मुवाफिक बुलाए गए हैं। अगर आप खुदा के नेक इरादे के मुवाफिक बुलाए गए हैं, अगर आप चुने गए लोग हैं, तो फिर याद कर लें, याद रखें हमेशा कि सब चीजें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करेंगी। चाहे वो बुरे हालात हो, चाहे वो अच्छे हो, उनमें से खुदा आपके लिए जरूर भलाई को निकाल लेगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम खुदावन के रहम और करम को पहचाने। खुदावन अपने खुदा को पहचाने कि वो कैसा नहायत रहीम और करीम खुदा है, वो कैसा मेहरबान खुदा है, और उसकी मेहरबानी कैसी उसके बच्चों के ऊपर हमेशा कायम रहती है। अय्यूब बयान करता है कि मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, वो हरगिज मुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना वो मुझे कभी छोड़ेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 94 उसकी 19वीं आयत में कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरे दिल को शाद करती है। फिर ज़बूर 107 और उसकी 28 आयत में लिखा है कि जो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं तो वो उनको उनके दुखों से रिहाई देता है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, आज चाहे हालात जैसे भी हो, जिस भी तरह के हालात में से आप गुजर रहे हैं, खुदा आपके लिए भलाई करना जानता है और वो भलाई कर सकता है। इसलिए खुदा चाहता है कि आप खुदा की भलाई में अपनी जिंदगी गुजारें ताकि उससे खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले और खुदा की कुव्वत और कुदरत आपकी जिंदगी से जारी हो। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदा, तू मुझे भी अय्यूब की तरह फख्र खुदा बना, तू मेरी जिंदगी को ऐसा बना कि तू मेरी जिंदगी पर फख्र कर सके, तुझे मेरी जिंदगी पसंद आए और मेरी जिंदगी, मेरा किरदार, मेरा चाल चलन, मेरा उठना बैठना, वर्ष के मेरा हर एक फेल खुदा तेरे नाम को इज्जत और
जलाल देने का बाइस ठहरे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, जो खुदावन हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो खुदावन तूने मुझे दिया और मैंने देनदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। ऐ बाप अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इस पाक कलाम के वसीले से तू इन जिंदगियों को बदल, इन जहनों को बदल, इन ख्यालात को बदल, इन सोचों को बदल, ताकि खुदावन ये तमाम जिंदगियां तेरे पास आए, तुझे अपना आका, अपना मालिक और अपना मुनजी कबूल करें और खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। ऐ खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। ऐ बाप हर तरह के हालात के लिए जिसमें से हम सब और हमारे घराने, हमारा मुल्क और ये तमाम दुनिया गुजर रही है, उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हमारा ईमान और तवक्कल और भरोसा तुझ पर है कि तू इसमें से हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। ऐ बाप उस भलाई को भी हम इस वक्त देख नहीं पा रहे, लेकिन हमारा यकीन और यकीन कामिल है कि तू यकीनी तौर पर इसमें से भलाई पैदा करेगा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और बाप तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको और हमारे घरानों को अपनी रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत से कसरत के साथ माला माल कर और सारी कमी, कमजोरी और घाटे को तू यस्सु के नाम से दूर कर। और खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए इस वक्त मैं इस कलाम को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से इन तमाम जिंदगियों में सील करता हूं, ताकि इब्लीस कभी भी इस कलाम को इन जिंदगियों में से चुरा ना पाए, बल्कि ये कलाम इन जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और उससे तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत, सलामती, बढ़ोतरी, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगता हूं। और बाप तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने पाक आसमान को, जो तेरा अच्छा खजाना है, अपने बच्चों के ऊपर खोल दे और इन्हें अपनी बरकतों से माला माल कर दे। हर तरह के दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, कमी, कमजोरी और घाटे से मुकम्मल तौर पर इन्हें धोकर पाक साफ करके आजाद कर दे, ताकि तेरा ही पाक यस्सु नाम तेरे बच्चों की जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूँ। आमीन।